कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर लगातार केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर निशाना साधे हुए हैं, जिसकी बीजेपी द्वारा आलोचना की जा रही है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं, इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। What are your concerns with regard to the use of the citizenship law to expel Muslim Indians who have lived in India for generations? How would you handle things differently? I think all Indian people, right, have a right to expression. All Indian people have a right to religious freedom. All Indian communities should feel free to express themselves. So I don't differentiate between any community, any caste. I think India, as I mentioned just now, is a conversation, and the freer and more open that conversation, the more powerful India becomes. एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूं, लाखों भारतीयों से मैंने सीधे बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वो बेरोजगारी, महंगाई से बहुत परेशान हैं। लोगों में गुस्सा है। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। I think the fact that there is a weakening of press freedoms, this is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom. It's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. I view India as a negotiation between its people, between different languages, different cultures, different histories. Mm-hmm. And the architecture that Mahatma Gandhi set up was to allow that negotiation to be carried out fairly and freely. And that structure that allows the negotiation between India's people is coming under pressure. I mean, this is a question you should ask Mr. Modi. So more apt. Okay. I don't know how you'll get there. As soon as we get him here. I don't know how you'll get there, but yeah, I think it would be better question directed at him. Okay. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल से सभी भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी भारतीय समुदायों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मैं लोगों के धर्म और जाति के आधार पर उनमें भेद नहीं करता। मैं बचपन से गांधीवादी सोच के साथ बड़ा हुआ हूं कि भारत क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। मैं जान से मारने की धमकियों से नहीं डरता। आखिर सबको एक दिन मरना है। ये मैंने अपनी दादी और अपने पिता से सीखा है। ऐसी धमकियों से डरकर आप रुक नहीं सकते। I mean, it's explained in the sentence, right? They sort of generate a certain amount of hatred in society. They polarize society, and they're not inclusive. They don't embrace everybody, and they divide society. That's yeah, and that's damaging in my view. To India, because India has always had a tradition of conversation, of openness. All our great leaders, spiritual, political, Mahatma Gandhi, Buddha, all of them
promoted harmony, promoted peace, promoted conversation. So it's in our culture, it's in our history to sort of bring people together and have these dialogues. So that's, I think it's a difference in ideology between us and the BJP. We feel India should be allowed to express itself, and we feel that political leaders should be comfortable in sort of being questioned and should learn from that questioning. So, I mean, it's just a difference in viewpoint. मुस्लिम लीग को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने इस पर कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी। ये पार्टी राहुल के मुताबिक सेक्युलर पार्टी है। वायनाड में अपनी स्वीक्रियता बनाए रखने के लिए ऐसा कहना उनकी मजबूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिदायत के बाद मणिपुर में एक के बाद एक लगातार हथियार जमा कराए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 140 हथियार सरेंडर किए हैं। इनमें SLR-29 कार्बाइन, AK, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसी हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड भी शामिल हैं। मणिपुर पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादातर जिलों में स्थिति सामान्य है। राज्य में 3 मई को हिंसा भड़की थी। इसके बाद पुलिस शस्त्रागार से करीब 2000 हथियार लूटे गए थे। महीने भर बाद भी जब राज्य में हिंसा नहीं थमी तो गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को 4 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। गुरुवार को शाह ने मणिपुर में लोगों से कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। शाह ने कहा कि कल से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके 24 घंटे बाद ही इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने सरेंडर किया है। उधर राज्य के 5 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को बयानबाजी से बचने की हिदायत भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने भाजपा हाईकमान के कहने पर 5 जून से होने वाली रैली को कैंसिल किया है। हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद ये फैसला किया गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR की गई है। पहली FIR बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी हुई है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। बालिग पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। गुजरात के वडोदरा शहर की दुमाड़ चौकड़ी पर ट्रैफिक की पुरानी समस्या हल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहां केंद्रीय मंत्री के हाथों फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। वडोदरा निकट नेशनल हाईवे पर दुमाड़ और देना चौकड़ी के पास 54 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है। दरअसल यहां हाईवे से आने जाने वाले वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से वाहन चालकों को रूबरू होना पड़ता था, जिसके बाद यहां फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी और जिसे आखिरकार आज पूरा कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में ये लोकार्पण किया गया, जिससे नागरिकों को काफी सुविधा होगी। दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ इस फ्लाईओवर ब्रिज को 12 लेन में तैयार किया गया है, जिससे सालों पुरानी ट्रैफिक समस्या तो सुलझेगी ही, सड़क हादसों में भी कमी आएगी। यहाँ दुमाड़ चौकड़ी पर दुमाड़, सावली, वडोदरा, नेशनल हाईवे नंबर 8 और एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक इकट्ठा होता था, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थीं। समय और पेट्रोल डीजल की बर्बादी भी होती थी, लेकिन अब यह समस्या इतिहास बन जाने की आस लगाई जा रही है। इन फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस ब्रिज का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़ समेत के भाजपा नेता उपस्थित रहे। આજુબાજુના ગામની જે મુશ્કેલી હતી એની સતત રજૂઆત માન્ય સંસદ સભ્ય રંજનબેન ભટ્ટે કરી અને આપણને જે વર્ષોથી સમસ્યા હતી ને ઘણા લોકોને જે મુશ્કેલી પડતી હતી એ ટ્રાફિકની સમસ્યાથી માંડીને ઘણો બધો સમય અને આપણા પેટ્રોલ ડીઝલના પણ પૈસા
આ બેનના પ્રયત્નથી બચ્યા છે, એટલે હું બેનનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બસ દેના ચોકડી અહીંયા બેઠેલા અમારા સૌ નાગરિકોને એનો સંપૂર્ણ અંદાજો છે કે આ દેના ચોકડી પર તમારા કેટલાય પરિચિતો, કોઈ વડોદરાથી આવતો હોય, કોઈ અમદાવાદથી આવતો હોય, પરિવારજનો એની રાહ જોતા હોય ઘરે કે કામ કરીને પરિવારજનનો કોઈ વ્યક્તિ પાછો ફરશે. સાહેબ, આવા અનેક લોકોએ આ નેશનલ હાઈવે પર સૌથી મોટું બ્લેક સ્પોટ ગણાતું આ ચોકડી, જ્યાં હવે બ્રિજ બનાવવાના કારણે કોઈના પરિવારજનોને ખોવા નહીં પડે એટલું મોટું કામ. सर, आज यहाँ पे बड़े लोग संख्या में कम होंगे, लेकिन आज अनेक परिवारजन होंगे जिन्होंने अपने परिवार के चिराग को घुमाया, और अनेक परिवार ऐसे होंगे जो हर रोज उनका बेटा बेटी जब तक घर वापस नहीं आता तब तक चिंतित रहते हैं. ऐसे हर एक परिवारजन आज केंद्र सरकार का आभार मानता है, डबल इंजन सरकार का आभार मानता है. गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास को एक दृष्टि दी है. इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, पर एक बात जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा. मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात लोगों को अक्सर बताता हूँ, और मेरे ऑफिस में वो लिख के भी रखा है. जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड. अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई, ये जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा. मुझे बहुत खुशी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री था. ये जो आप मुंबई में जाते हो, पचपन उद्यानपुर और समुंदर में जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय में स्टेट पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते मुझे करने का सौभाग्य मिला. और वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने शहरों में तो काम करते हो, पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और मुझे बताओ. मैं 3 महीने उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक योजना बनाकर वाजपेयी जी को दी, और 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने लाल किले पर उसकी घोषणा की थी. उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से लगभग 4.5 करोड़ गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ. ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला. ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है. आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये दोनों भी काम जो थे, ये जो काम पूरे हुए हैं, इसका सही अर्थ में अगर श्रेय किसी को है तो मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा हमारी सांसद बहन को. वो ये काम बहुत छोटा है, वैसे मैं 1000 करोड़ के नीचे कोई काम में जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लाखों करोड़ के काम है. और उनके आग्रह के कारण मैं यहाँ आया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इस काम के कारण जो लोगों की जान बचने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है. गुजरात में अरब समुद्र में बने सर्कुलेशन के चलते चक्रवात और बारिश की संभावना जताई जा रही है. अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में वेदर मोस्टली ड्राई रहने का संभावना है, लेकिन वेस्टर्ली विंड है, मॉइस्चर इनकर्शन काफ़ी है एंड कहीं किधर लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है. इवन अहमदाबाद में भी आज लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी होने का संभावना है. शाम और इवनिंग और आफ्टरनून तक कन्वेक्टिव एक्टिविटी होने का संभावना है और थंडरस्टॉर्म बारिश भी हो सकती है. कारण है साउथ वेस्ट राजस्थान का ऊपर एक सर्कुलेशन है और वो सर्कुलेशन के कारण से मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है
एंड हीटिंग भी है, इसके कारण से लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। मोस्टली प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो काफी स्टिफ है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके कारण से स्ट्रॉन्ग विंड होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन वार्निंग दी गई है। इवन गुजरात रीजन में जैसे लैंड एरिया में भी विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर पर आवर भी रहने का संभावना है।